Jai Guru. So now I will start the holy book readings. Vipul Mehetada from Barry will read from Hindi Satyanusaram. Vipul da. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में ही पड़ोगे। जगत में मनुष्य जो कुछ भी दुख पाता है उनमें अधिकांश ही कामिनी कांचन की आसक्ति से आते हैं। इन दोनों से जितनी दूर हटकर रहा जाए उतना ही मंगल। शांति शांति शांति। जय गुरु। Vibhav da Shahapati Ritik, Vibhav Haldar da will read from Satyanusaram English translation. Jai Guru. I'm going to read the English version of Satyanusaram, The Pursuit of Truth. I wanted to say a little bit about Satyanusaram. Sri Thakur wrote this book, these messages, in 1910 when he was only 22 years old. These messages are very true fundamental principles of our life. It's like a formula to solve the math problem. This fundamental principle can unfold our everlasting life and light. Now I'm going to read a couple of messages. Sri Thakur said, "Oh, you who would devotee be with hope for name and riches, don't make me your Lord and Master. Beware. If mastery within awakens out, if awakens not, master, center, none you have, and deceiving, you shall be deceived. Almost all the miseries men have in the world come from the addiction to Kamini Kanchan, women and gold. It is better to remain as far away as possible from these two." Jai Guru and Shubho Vijaya. Jai Guru Dada. Narayani Hutama from Brampton will read from Hindi Nari Niti. Jai Guru Ma. Hello to everyone. नारी नीति हिंदी अनुवाद। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी। पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो। ससभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुक्त हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। स्वस्ति, तुम सोच सकती हो स्वामी के प्रति या संसार के प्रति जो कुछ कर्तव्य है सिर्फ तुम्हारा ही, किंतु समझो भला पाने के लिए भला ही करना पड़ता है। यह जिस प्रकार तुम्हारे समय लागू है उसी प्रकार दूसरे के समय भी। तुम्हें यदि दूसरे के मंगल हेतु कुछ करना है तो पाने की आशा रखे बगैर जितना दूर संभव हो उद्वेग शून्य भाव से कर सकती हो। देखोगी पाने के लिए और तुम्हें बेचैन होना नहीं पड़ेगा। प्राप्ति तो होगी ही, तुम्हारे मन में अंतरिक्ष से मानो कोई गा उठेगा, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वाणी संख्या 180। जय गुरु। Jai Guru Ma. Now Mridula Home Chaudhary Ma from Toronto. So currently she is in India. Will read from Nari Niti English version. Nari Niti English version. O my daughter, let your service, way of conduction yourself, thoughts and words induce such an impulse among men in general that they regard full kneeling before you with heads bent, become charmed, enlightened, satisfied, and gratified in calling you in a deeply reverential tone, my mother, my progenitress. Then only are you a daughter, then only are you a woman.
Women's Code 180. You can think of your duties to your husband and family as yours alone, but understand if good is to be gotten, good is to be done. And as this applies to you, it applies to all. If you go on doing whatever is to be done for others' well-being as far as possible, without hope of getting and without anxiety, you will see that you need not be in a dither over getting anymore. The getting has to come. It will be as if someone sings out in the welkin of your mind. Joy Guru, Shubho Vijaya. Jai Guru Ma. Now, Devapriya Saha from Montreal will read from Shastro or Sadachar Sutra. Devapriya? Jai Guru Devapriya. Can you hear me? Okay, I think Devapriya has not joined today. So I'll read from Shastro Sadachar Sutra. জীবনের শত উৎসরণী নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যতই কমে আসতে থাকে, আনন্দকে অবসন্ন করে অবসাদও এগিয়ে আসতে থাকে ততই। ক্রমপদক্ষেপে বার্ধক্য আবির্ভূত হতে থাকে। জীবন দীপও নিবু নিবু হয়ে চলে। যেমন করেই পারো সুকেন্দ্রিকতার সহিত আনন্দ উৎসারণাকে বৃদ্ধিপর করে রেখো। বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া আয়ু কমই অবসন্ন হতে থাকবে। তা ব্যষ্টি জীবনেও যেমন, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনেও তেমনি। বাণী সংখ্যা 26। Now, I would like to ask Shaunak Homda from Ottawa to read from Principles of Health and Hygiene. Jai Guru. Jai Guru. Reading from verse number 26 of Principles of Health and Virtue. More the auto-exerting prevention and controlling power of life dwindles, more the mental exhaustion creeps in through exhausting happiness. Old age advances in gradual footsteps too. Life current flows in an extinguishing progression. Keep the joyful exception progressive with ideal-centric orientation by all means. Longevity will exhaust slowly without specific exception. That is equally true for a collective life as well as social and national life. Jai Guru. Jai Guru Dada. Now, we have completed our holy book readings. Now I would like to ask Prama Debroy Ma from Brampton to offer a bhajan at the lotus feet of our loved Lord Shri Shri Thakur. Jai Guru Ma. জয় গুরু দাদা। আমি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে প্রণাম জানিয়ে শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি গান পরিবেশনের চেষ্টা করছি। তুমি করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা, তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার পায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার পায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি ছাময়,
সর্বজনে না শুনি তোমার। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি ইচ্ছাময়। রাখো হে দয়াল সর্বজনে না শুনি তোমার। সবারই মন যেন তব পানে ধায়। সবারই মন যেন তব পানে ধায়। আরতি করি পদপ্রান্তে নিত্য বন্ধনায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, দেখেছ তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি দয়াময়। লোভ মোহ দলিত তব করুণায়। তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি দয়াময়। লোভ মোহ দলিত তব করুণায়। সদা ভক্তি যুক্ত রঘুচিত তব সাধনায়। সদা ভক্তি যুক্ত রঘুচিত তব সাধনায়। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমারে ভাই। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বরদনায়। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমারে পাই। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বরদনায়। জয় গুরু দাদা, সবাইকে জয় গুরু বিজয়। মা, জয় গুরু, জয় গুরু। খুব সুন্দর, আপনার গান তো সবসময় সুন্দর। তো আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের আরো ইষ্টময় জীবনের জন্য। ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। Now I would like to ask Upanita Adhikari Ma from Barry to offer a bhajan at the lotus feet of Shri Shri Thakur. Upanita Ma, Jai Guru. জয় গুরু সকলকে। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি একটি হিন্দি সঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে। ঠাকুর জি মেরে পরম দয়াল, ঠাকুর জি মেরে পরম দয়াল, परम करुणा धन सत्य निरंजन, परम करुणा धन सत्य निरंजन। प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे
परमानंद प्रिय भव भयहारी सकल दुख भाव वेदन हारी परमानंद प्रिय भव भयहारी विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराज विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराज चितन वर्धना प्रभु जीवन आधार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दया सुभदा पालक अभय नायक प्रीति विनायक श्रेय विधायक सुभद पालक अभय नायक प्रीति विनायक श्रेय विधायक आलोक ज्वल पावक पुरुष आलोक ज्वल पावक पुरुष पुरुषोत्तम प्रभु देवीनत प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल वैशिष्ट पाले अपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परमाधार वैशिष्ट पाले अपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परमाधार भुवन विभूषित करुणापार भुवन विभूषित करुणापार सनातन इष्ट नाम अमृत आधार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल परम करुणा धन सत्य निरंजन परम करुणा धन सत्य निरंजन प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल জয় গুরু সকলকে জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর। আমি পরম পিতার চরণে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি, আপনার পরিবারের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি। ভালো থাকবেন। হ্যাঁ জয় গুরু जय गुरु, जय गुरु। सो अभी मैं हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलोर से, माइसोर से, सॉरी, ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मी राहुल ठाकुरदा। तो राहुल ठाकुरदा से मैं अनुरोध करूंगा कि दादा इष्ट प्रसंग के लिए। जय गुरु दादा। Jai Guru. Well, Dada, how much time do I have? दादा 20 minutes। Okay. सर्वप्रथम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपद श्री श्री बौरदा के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक वृंद, कर्मी वृंद, गुरु भाई, माँ, बच्चों सभी को यथायोग्य स्थान में मेरा रामानंदित जय गुरु। एंड
I cannot thank enough for the opportunity. इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य मिला है और ठाकुर जी का कुछ बात बोलने का सुयोग मिला है। कुछ भाई जो सत्संग आश्रम के आसपास में रहते थे, तो ठाकुर जब बांग्लादेश छोड़ के देवघर आए, जितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल आडंबर था वो सबको एक मुहूर्त में ठाकुर ने त्याग करके देवघर आए थे और वहां पे नए सिरे से विभिन्न तरह का इंस्टीट्यूशंस कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। केमिकल वर्क्स बोलिए, प्रेस बोलिए, स्कूल बोलिए, हॉस्पिटल्स बोलिए, व्हाट नॉट, एंड इट इज ऑल फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड टू हेल्प अस एग्जिस्ट एंड ग्रो। लेकिन जैसा स्वाभाविक होता है, जब एक पेड़ जहां निकलता है, पेड़ के आसपास कुछ कुछ दूसरे भी जो पैरासाइटिक जो डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जो कि उसी पेड़ के खाद से अपने आप को थ्राइव करते हैं एंड इवेंचुअली दे ट्राई टू हार्म द सेम थिंग। तो वो परिवेश में भी ऐसा ही स्वाभाविक है, हर तरफ पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो कुछ लोग थे ऐसा जो सत्संग के इस डेवलपमेंट को देख के, इस प्रोग्रेस को देख के ईर्ष्या करते थे और सोचते थे कि शायद ये उनके एग्जिस्टेंस पे एक प्रहार होगा। So they utilized every opportunity provided, or they could gather to do whatever harm they could do to the organization. Satsang as an organization was never developed consciously. It just spread around the loving personality which Thakur was. One fine day, आश्रम के एक भाई हैं, he got into some fight, जो आसपास के लोग हैं, and they took it as an opportunity. उनका दिल में जो था कि we will do some harm to this setup. तो उन्होंने सबने प्लान किया, जिस दिन झगड़ा हुआ है, कि रात को इसी झगड़े के बेसिस पे they will come in group और they will disrupt, they will damage whatever जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी था सत्संग का। साधारणतर हम लोग बहुत सारा बात बोल जाते हैं, बट अपने जीवन में अगर झांक के देखें, हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ हो and we get to know of it, हमारा क्या रिएक्शन होगा when we know that somebody is going to somebody is coming to inflict harm whatsoever on us, on our in our house, on our setup, to our environment. हम लोग क्या करेंगे? अपने, मुझे लगता है अपने कैपेसिटी, अपने बल, अपने शक्ति के हिसाब से हम उसको रेसिस्ट करेंगे। We'll probably try to give like to like. ठाकुर को जब ये बात पता चला कि आज कुछ लोग उपद्रव करने के लिए आ रहे हैं आश्रम में, और ये भी पता चला कि वो लोग तो सब, जब आदमी कुछ अच्छा करता है तो बुलंदी से सामने से आ सकता है, लेकिन जब हम कुछ चीज जब हम जानते हैं, हम खुद ही संकोच में अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, तो वो बुलंदी से हम नहीं आ पाएंगे। तो ये जो भाई लोग आ रहे थे, ये लोग सत्संग के सामने के गेट से नहीं, ये लोग पीछे का एक रास्ता था, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता था। नॉर्मली लोग उस रास्ते का व्यवहार नहीं करते थे यातायात करने के लिए, वहां पे तरह तरह का जंगल भी बीच से गुजरना पड़ता था, तरह तरह के कीड़े मकोड़े थे, तो लोग ऑब्वियसली उस रास्ते को यूज नहीं करते थे, बट ये लोग तो उपद्रव ही करने आ रहे थे, तो दे डिसाइडेड टू यूज दैट पाथ। एंड द मोमेंट ठाकुर गॉट टू नो ऑफ दिस, कि आज शाम को रात में अंधेरे होने के बाद कुछ लोग ऐसा आने वाले हैं और सत्संग आश्रम में कुछ उपद्रव करने का उनका प्रोग्राम है, ठाकुर का पहला रिएक्शन क्या था? He grew so restless कि ये जो लोग आ रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं, वो रास्ता इतना ही दुर्गम है, सहज से उधर से आ पाना, पार पाना संभव नहीं है। बहुत तरह का कीड़े मकोड़े हैं, बहुत तरह का पथरीला रास्ता है। They could inflict damage to their own self. First thing which Thakur ordered impromptu was to instruct his people to go and install lights on that pathway. So that जब लोग आए तो वो अंधकार में क्षतिग्रस्त ना कर लें अपने आप को, वो इसीलिए वहां पे ठाकुर ने सबसे पहले लाइट लगाए। ये है ठाकुर,
ठाकुर को पकड़ के हम प्रत्येक के जीवन में मिरेकल का कमी नहीं है, लेकिन वही ठाकुर ने बोला है कि मिरेकल इज अ मिरेज ऑफ इग्नोरेंस। मैं जो यहां बैठा हूं, मैं स्वयं अनुभव करता हूं मैं ठाकुर का मिरेकल हूं, लेकिन ठाकुर ने एक ही मिरेकल, ठाकुर डिस्पाइज मिरेकल्स, द ओनली मिरेकल ही एडवोकेटेड वाज लव मिरेकल। मैं बहुत ही अधम व्यक्ति हूं, अपने जीवन का एक छोटा सा घटना बोलता हूं, नॉट टू से दैट आई हैव बिकम समथिंग, नो, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड विथ माय मिनिस्ट्रियल तो एक समय था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, और कई बार एक गुरु भाई के साथ मैं ऑफिस तक जाता था, और रिटर्न में साथ नहीं हो पाने की वजह से, टाइमिंग मैच नहीं हो जाने की वजह से मैं बस वगैरह लेके आता था। बस में कई बार इतना भीड़ होता था बैंगलोर में कि अगर पीछे के गेट से मैं चढ़ा, एट टाइम्स द टिकट कलेक्टर यूज्ड टू बी ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बस, तो वो फ्रंट गेट के पास में होते थे, एंड इट यूज्ड टू बी सो क्राउडेड कि मैं उनके पास नहीं जा सकता हूं, वो भी मेरे पास नहीं आ सकते हैं। इट यूज्ड टू बी सच, इट वाज टू बी जैम पैक्ड। तो कई बार टिकट लेना नहीं भी होता था। इट वाज नॉट अ कॉन्शियस थिंग टू डू, बट इट यूज्ड टू सो हैपन। और मैंने कभी इस बात पे उतना ध्यान भी नहीं दिया, इस चीज को इतना गुरुत्व भी नहीं दिया। एक बार ऋतिक कॉन्फ्रेंस में वर्तमान आचार्य देव के श्रीमुख से एक घटना सुना। वो बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल की एक बात है, एक दादा स्कूटर से जा रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रहा है, और रास्ते में उनका एक पुल आता है जहां पे नॉर्मली एक टोल गेट था। तो बारिश इतना तेज हो रहा था, ये दादा अपना निकल गए, कहीं कोई बाधा नहीं, रास्ता पूरा खाली, चले गए अपने गंतव्य पे। जब वापस लौट रहे हैं उस समय बारिश रुक गया है। तो फिर उन्होंने देखा, जब वही पुल को जब पार कर रहे हैं, वहां पे बैरिकेड्स लगा हुआ है, लोग वहां पे टोल कलेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कितना, तो उनको बोला गया 5 रुपए टोल। इन्होंने निकाल के 10 रुपए दिया और बोला कि जब मैं आ रहा था तब आप में से बारिश की वजह से कोई भी नहीं थे, तो मेरा 2 तरफ का ही टोल बनता है, कृपया करके आप रखें। ये बोलते हुए आचार्य देव ने एक बात बोला कि আমরা সৎসঙ্গী হওয়ার তো প্রথম এটাই হচ্ছে, ধাপই হচ্ছে যে একটা ভালো মানুষ হওয়া, একটা ভালো সিটিজেন অফ দ্য সোসাইটি হওয়া। আমরা যদি তাই না হতে পারি তাহলে আমরা কি সৎসঙ্গী হলাম? हम लोग अगर वही नहीं हो पाए तो और हम क्या सत्संगी हुए? मुझे और मालूम नहीं, लेकिन उस दिन के उपरांत से मैं अगर पीछे के गेट से बस में चढ़ा और टिकट नहीं ले पाता था, आई यूज्ड टू इंश्योर कि जब मैं उतर रहा हूं तो मैं उतरने के बाद फ्रंट गेट से जाके मैं पैसा देके टिकट खरीदता था। नॉट बिकॉज एंड मेरा पर्सनल ये अपना अनुभूति बता रहा हूं कि इट वाज नॉट बिकॉज आई हैड लर्न समथिंग टू बिकम अ ग्रेटर सिटीजन और समथिंग लाइक दैट, नो। माय ओनली इंटेंशन वाज somebody is looking upon me who loves me like no one else. मैं उनको क्या नजर दिखाऊं, मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो पाऊं if I do not become the person that he wants me to become? And each one of us are on that path of becoming. As Thakur said, a man is shaped and fashioned by what he loves. ठाकुर का पर्सनालिटी को विश्लेषण कर पाना, व्याख्या कर पाना, बहुतों ने चेष्टा किया, मेरी तो बस की बात ही नहीं है। ठाकुर का पर्सनालिटी का क्या व्याख्या करेंगे? जो मैंने घटना बताया, ऐसा सोच के देखिए, हमारे जीवन में रहा हुआ कोई हमको डैमेज करने आ रहा है तो हम क्या प्रतिवाद करेंगे उसका, और ठाकुर ने क्या किया। अभी कुछ दिन पूर्व देवघर गया था, आचार्य देव एक घटना बोल रहे थे, एक दादा के बारे में बोल रहे थे कि जो कि जब भी ठाकुर के सामने बैठते थे, ठाकुर को इतना गाली देते थे, लिटरल टर्म्स में गाली देते थे, हर समय निंदा ही करते थे लोगों के बीच में कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब ढोंग छलावा और क्या नहीं। और ठाकुर हर समय ऐसे ही प्रेम से मुस्कुराते हुए सब ग्रहण करते थे। लेकिन आसपास के लोग, जैसा हम आप सुन के भी जैसा हमारे शरीर में आग लगेगा कि जिनको प्रेम करते हैं उनके ऊपर ऐसा आघात, तो नेचुरली लोग बहुत ही क्रोध में आ जाते थे। ठाकुर सामने हैं बोल के कुछ कर नहीं पाते थे।
एक समय ऐसा आया, लोगों ने उनको अकेला पाया उस उक्त व्यक्ति को और उसके पिटाई करने के लिए उसके पीछे भागे, और ये व्यक्ति भागता फिर रहा है कि कैसे बचा जाए इस जन समूह से। भागते भागते जब और कोई उपाय नहीं सूझा तो दौड़ के आया ठाकुर जहां सो रहे थे। ठाकुर एक बरामदे में सो रहे थे। ठाकुर के पास आके उसने लात मारा ठाकुर को, सोते हुए अवस्था में ठाकुर को पांव मार के उसने जगाया, बोला दैट देखो तुम्हारे व्यक्ति, तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं। हमारे आपके साथ ऐसा इसका एक फ्रैक्शन ऑफ दिस रिएक्ट अगर ये होता तो हम लोग क्या करते। और ठाकुर ने क्या किया, ठाकुर ने सहस्नेह उनको अपने पास उठाया और सब लोगों को एकदम चेतन किया, बल्कि धमक दिया कि जैसे कोई भी कोई नहीं करे। हम लोग सब हेम कवि का बात सुने हैं। हेम कवि आए और बोले मैं तो ये शराब नहीं छोड़ सकता हूं। ठाकुर ने कहा ठीक है, आप छोड़ने के लिए मैं बोल भी नहीं रहा हूं। ठाकुर स्वयं व्यवस्था करते थे उनका शराब का, उनके उस मदपान का। घटना हम सबको मालूम है। सारा रात ठाकुर ऐसे ही, हेम कवि एक दिन शराब के नशे में वॉमिटिंग कर देते हैं ठाकुर के शरीर के ऊपर, और उस दुर्गंध में एक क्षण जहां रहना हमारे आपके लिए संभव नहीं। ठाकुर सारा रात वैसे ही रहे। हेम कवि उनके प्राय उनकी गोदी में, और ठाकुर उनके ही उस हेम कवि के वॉमिटिंग से पूरे लथपथ, और एक भी उनका कोई मूवमेंट नहीं ताकि उनका हेम कवि के विश्राम में कोई जैसे बाधा ना हो। सुबह उठे और उस ग्लानि में हेम कवि से वो छूट गया। हमको एक ही आवश्यकता है, ठाकुर का उस प्रेम को अनुभव करने का। And the only thing we need to give back is that love, that unconditional love and surrender and nothing else. That is the road to our transformation. Each one of us are mystical images. ऐसा बोल के चलने से नहीं होगा कि कुछ एक घटना सुना ये शायद ठाकुर के लिए ही संभव हो। नहीं, ठाकुर ने जब नरदेह में लीला किया है तो प्रत्येक आचरण, प्रत्येक उनका वक्तव्य, प्रत्येक उनका बात व्यवहार ठीक वैसा ही जैसा वो हमसे चाहते हैं, और हम प्रति प्रत्येक से संभव है। इसीलिए हम लोगों ने जो सत्यानुसरण में पाठ किया तो पहले ही बोलते हैं कि अर्थमान यश की आशा में ठाकुर को ना पकड़े, अपने अंदर के ठाकुरत्व को जागृत करें। मैं जैसा मेरे ठाकुर को जैसा भी समझ पाया, और मुझे लगता है ठाकुर को और समझ तो हम लोग क्या पाएंगे, एक चीज प्रति प्रत्येक ने अनुभव क्या है, वो है प्रेम। इसलिए हम और कुछ उपमा ना लगा के एक ही उपमा बोलते हैं ठाकुर को। तो ओनली ऑब्जेक्टिव दैट वी यूज इज परम प्रेममय, जिनका प्रेम का कोई तल नहीं है, अनफत में वल्लभ, जिनका दया का कोई शेष नहीं है। तो हमारा एक ही फिर कारण होता है, हम लोग जो जहां हैं, मैं यहाँ मैसूर में हूं, आप लोग सब कनाडा में हैं, या हम लोग विश्व के जिस भी प्रांत में, हम लोग उस स्नेह को ही जैसा वितरण कर सकें अपने परिवेश में। बिकॉज द ओनली वे टू सेव ह्यूमन काइंड, और व्हाई ओनली ह्यूमन काइंड, इंटायर क्रिएशन is to walk on the path of being and becoming as showed by the love incarnate. और जैसा दिन भर मोबाइल चार्ज करके रात को एक समय आता है, या 2 दिन में एक समय, जिसका जैसा एक बार उसको चार्जर में लगाना पड़ता है, तो ऐसे ही खाली ठाकुर जी का बात सुन के पढ़ के तो शायद क्या ही हमारा प्राप्ति होगा मालूम नहीं। हमको भी आवश्यकता है वो रिचार्ज हो जाने का, और उस रिचार्ज के लिए ठाकुर का ये दया है कि उन्होंने ये आचार्य परंपरा हमको दिया है। जब हम गाड़ी में चल रहे होते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर बहुत परिपक्व नहीं है, तो हम कभी भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते हैं। मन हमेशा लगा रहता है उसी शंका में कब जाके कहां ठोकर मार दे। लेकिन अगर जब हम उस ड्राइवर को जानते हैं कि वो ठीक मुझे अपने गंतव्य पे पहुंचा देगा, तब उसी गाड़ी में बैठ के शायद हम निश्चिंत से एक नींद का झोंका भी ले सकते हैं। ठाकुर हमारा जीवन का वही driver, and there can be none better than him to take us on this path of being and becoming. And through what? Through the living guide, the guide exemplar. हम लोग रामायण महाभारत गीता क्या क्या ग्रंथ पढ़ें और उससे क्या प्राप्ति होता है, कि हमारा आपका सभी का जाना हुआ है। ऐसा अगर होता, सिर्फ किताबों से अगर बात बन जाता, सिर्फ लोगों का बात सुनने से बात बन जाता, तो कुछ बात ही नहीं था, हमको स्कूल में एडमिशन का भी जरूरत नहीं था। हम किताब खरीदते और घर में ही सब हो जाता है। लेकिन नहीं, एक समय ऐसा आता है, द डूअर इज ऑलवेज मी, मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा क्रॉस रोड आएगा जहां पे आई नीड अ गाइड टू टेल मी दिस माइट बी द वे वी कैन वॉक। तो
गाइड एग्जाम्पलर इज दैट वेरी गाइड। वो रिचार्ज करने का आवश्यकता है उनका संग करके। हम लोग प्रत्येक दिन बोलते हैं साध संग मोहि देव नित। कोई साध संग कौन? ठाकुर का जो जीवंत स्वरूप है। जैसे दया को एक दयावान व्यक्ति के अलावा, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट, कैसे अनुभव करेंगे आप? जैसे हम लोग बात करते हैं तो दयावान व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। गुस्सा तो किसी ने गुस्सा किया होगा, शायद उसके बारे में सोचते हैं। ईच एंड एवरी इमोशन ठाकुर को अगर अनुभव करना है तो जिन्होंने ठाकुर को संपूर्ण रूप से अपने अंदर जीवंत किया है, उनके थ्रू ही हम समझ सकते हैं। वो है हमारे जीवन का आदर्श। चेन्नई मंदिर का उद्बोधन हो रहा है 2000 साल में। श्री श्री दादा समस्त परिवार के साथ आए हैं और उसके बाद उद्बोधन के बाद कुछ दिन रहना हुआ था तो आसपास के जगह भी गए थे। तो कोडाईकनाल जाने का प्लान। श्री श्री दादा जब जा रहे हैं तो स्वाभाविक है बड़ा एक गाड़ियों का काफिला, झुंड में कई सारे गुरु भाई, दे आर ऑल गोइंग अलोंग विद हिम। तो नॉर्मली हम लोग जब किसी जर्नी पे जाते हैं तो कैसा होता है, आप अगर कनाडा में एक जगह से दूसरे सिटी में जाओगे, यू विल हैव अ मिडवे स्टॉप मे बी, which is convenient, you know, to refresh ourselves and all that. Normally अगर मान लीजिए मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहा हूँ, just before entering the city कोई स्टॉप नॉर्मली नहीं लेते, क्योंकि अब तो गंतव्य आ ही गया, वहां रुकने का तो आवश्यकता ही नहीं। श्री श्री दादा जब जा रहे थे तो कोडाईकनाल ठीक इंटर करने से पहले अचानक रुक गए, और जैसे ही रुक गए तो एक लाइन से सारी गाड़ियां रुक गई। अब इतना बड़ा एक जन समूह जो उनके साथ चल रहा था, इतनी सारी गाड़ियां एक लाइन से जब सड़क पे रुक गई तो स्वाभाविक रूप से सबका ही ध्यान उस तरफ जा रहा है। एक और ग्रुप जा रहा था, छोटा सा एक ग्रुप, वो देखता है इतनी सारी गाड़ियां क्यों रुकी है, तो वो लोग भी कौतूहल उत्सुकता बस वो भी रुक गए। जिसको पाया उनसे पूछा कि व्हाट हैज हैपेंड, तो उन्होंने बताया कि नो आवर गुरुजी हमारे उनके साथ में हम लोग जा रहे हैं, सो ही हैज स्टॉप्ड एंड दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग हिम, दैट इज व्हाई वी हैव स्टॉप्ड। ओके गुरुजी, क्या मैं भी जाके दर्शन कर सकता हूँ? तो उक्त भाई ने कहा कि ऐसे तो रास्ते के बीच में संभव नहीं हो पाएगा, देखिए उनका दया हुआ तो आप तो कोडाईकनाल ही जा रहे हैं, हम लोग भी वही जा रहे हैं, देखिए शायद सुजोग हो। इतना छोटा सा एक बात बोल के, और वो जो दूसरा जो ग्रुप था, छोटा ग्रुप था, दे यू नो वेंट अहेड विद देम ऑन देयर पाथ रूट। बाद में श्री श्री दादा जब कोडाईकनाल पहुंचे, जहां भी रहने का व्यवस्था था सब व्यवस्था किया गया, होटल का एक ठीक किया गया था, सब अपने अपने कमरे में विश्राम करने लग गए। और जो लोग ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स थे, जो चेन्नई के या साउथ इंडिया के जो गुरु भाई लोग थे, वो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स थे, वो लोग विभिन्न तरह का अरेंजमेंट्स ओवरसी कर रहे हैं। अचानक से देखते हैं एक आनंदा बोल के हैं, श्रद्धेय आनंदा, आप तो नहीं रहे, तो श्रद्धेय आनंदा अचानक होटल लॉबी में कुछ काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अचानक देख रहे हैं कि श्री श्री दादा बाहर निकल गए रूम से। तो तुरंत उन्होंने जाके प्रणाम किया। श्री श्री दादा ने बोला 19 दीक्षा का व्यवस्था कर सकते हो? अभी हमारा ऐसा ही है कि ऐसा श्री श्री दादा ने कुछ बोला तो ना बोलने का तो सवाल नहीं, उन्होंने भी स्वतः रूप से ही बोल दिया, तो तस्पुर भाव से आगे तो आगे तो बोल दिया, श्री श्री दादा भी चले गए। अब तो इनका माथा में अभी यही घूम रहा है कि अभी 19 दीक्षा होगा कैसे, घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, किसको पकड़ा जाए, इस होटल में किसको पकड़ा जाए। फिर सोचा कि शायद होटल का जो स्टाफ है यही तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उनके पास गए। वो लोग सब, दोपहर का भोजन खत्म शेष हुआ था, शाम के लिए बहुत तरह की तैयारियां करनी थी, तो सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई इनका बात सुनने तक के लिए भी तैयार नहीं। अब और परेशान हो गए, ये 19 दीक्षा ये क्या लीला है उनका, अब ये कैसे करूंगा मैं, यही चिंता में पड़े हुए हैं। समय निकलता जा रहा है, अचानक देखा कि गेट पे थोड़ा सा कुछ कमोशन, थोड़ा कुछ हलचल हुआ, कुछ लोग आए हैं। बाहर जाके देखते हैं कुछ एक छोटा सा ग्रुप गेट पे खड़ा है, शायद वो लोग भी होटल में आ रहे हैं। भाग के गए ये आनंदा और गेट पे जाके देखा है ये वही ग्रुप है जो रास्ते में रुका था और श्री श्री राधा का दर्शन करना चाह रहा था, लेकिन उस समय संभव नहीं हो पाया था। वो ग्रुप भी इसी होटल में ठहरा है और आनंदा और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस हेड काउंट ले रहे हैं कि कितने लोग हैं वहां पे, और हेड काउंट लिया तो ठीक वही 19 लोग। बाद में ठाकुर जी का दया से सभी 19 भाइयों का दीक्षा। तो ये है हमारे आचार्य, ये है हमारे गाइड एग्जाम्पलर, जिनकी गाड़ी में बैठ के और चिंता करने का आवश्यकता नहीं, हम ठीक अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। हमको और कुछ अपना बुद्धि लगाने का, एनालिसिस विश्लेषण करने का आवश्यकता ही नहीं है। अगर एनालिसिस करना ही है, अगर बुद्धि लगाना ही है, तो ठीक उसी तरह कि उनका जो निर्देश है, उनका जो आदेश है, उसको मैं कैसे पालन करूं। शायद मेरा समय शेष हो रहा है, एक छोटा सा घटना बोल के अंत करता हूं। अभी हम लोग सभी जानते हैं डीपी वर्क्स का काम चल रहा है,
कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, अचानक से पुष्पद अभिन दादा ने मुझे निर्देश दिया, 3 दिन के लिए त्रिवेंद्रम जा सकते हैं? मैं बोला आगे जा सकता हूं, और कुछ नहीं बोले। बोले 3 दिन का प्रोग्राम करना होगा, बैंगलोर से एक ग्रुप लेके जाएंगे, क्या काम है ये आपके पास फोन आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो ऐसा करते करते फिर फोन का इंतजार में था कि कब क्या निर्देश, कैसा क्या आएगा। तो पता चला डीपी वर्क्स में, वहां पे त्रिवेंद्रम में तो बहुत सीमित संख्या में गुरु भाई हैं, तो हमको बोला गया कि हम एक ग्रुप करके जाएं और इनिशियल काम को जैसे किक स्टार्ट करने में हम लोग सहयोगिता करें। अभी एक ऐसे जगह पे हम गए हैं जहां लिटरली भाषा का 1% भी ज्ञान नहीं है हमको। मलयालम भाषा हमको जरा भी, हम में से किसी को भी मालूम नहीं। वहां के स्थानीय 2-4 गुरु भाई निश्चित रूप से हमारे साथ में, बट ज्यादा तो हम जो एक बड़े ग्रुप में गए हैं, हमको किसी को कुछ ज्ञान नहीं। हमको पुष्पद अभिनदा के निर्देश से 2 दिन घूमना है और तीसरे दिन सत्संग होगा, ये बोला गया है। और हम लोग निकल पड़े हैं ऐसा एक ज्योग्राफी में जहां उस जिस लोकेशन में खाली गांव का नाम दिया गया है, और हम पहुंच गए हैं। एक आदमी का नाम से खाली पूछ रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं कि इसको जानते हैं क्या। एक नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं, बहुत ही एक कॉमन नाम था रविंद्रन। ऐसा तरह तरह का घटना हुआ। मैं एक घटना बोलता हूं। रविंद्रन पिल्लई, अब केरला में Ravindran is a very common name. Ravindran Pillai is a very common name. How to identify? How to find out? We had almost given up after almost hour and a half spending in that village. We went, lanes to lanes, but we could not identify. Nobody could guide us. Nobody knew. Finally, हम लोग when we were about to give up, वहां पे हमारे साथ में एक शिवपत पालदा, वहां के जो इंचार्ज हैं, वो भी खड़े थे हताश होके, क्या करना है। एक दुकान पे गए हैं, ऐसे ही पूछता है, रैंडम पूछते हैं, इस रविंद्रन पिल्लई को जानते हैं? दुकान वाले ने बोला नहीं, मैं नहीं जानता। वहां से एक आदमी गुजर रहा है ग्रीन टी शर्ट में, वो बोलता है रविंद्रन पिल्लई, मैं पुलिस का आदमी हूं, आई थिंक आई नो हिज होम। वो एक अमुक जगह हमको लेके गया, बोला ये उनका घर, शायद आप देखिए। वो भी नाम से नहीं जाना, नाम के साथ में घर का नाम एक दिया हुआ था, साईं कृष्णा। तो वो साईं कृष्णा, उसने शायद जाते जाते, कहीं पुलिस वाले हैं तो राउंड पे रहते हैं, कहीं नजर पड़ गया था उनको, तो उन्होंने बताया उस जगह पे। उसके घर में जब हम लोग जाते हैं, वो घर में वो व्यक्ति रविंद्रन बोल के कोई नहीं है, वो है, मतलब वो वहां पे नहीं है। उसकी पत्नी वहां थी, और पत्नी देखती है हम लोग टूटे फूटे लैंग्वेज में जब बात कर रहे हैं, वो स्वभावतः अपने पति को फोन करती है। उसका पति कहीं और काम पे गया हुआ था कि सच पीपल हैव कम, दे आर वियरिंग व्हाइट्स एंड ऑल दिस एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर यू। और जैसे ही उसने वो डिस्क्रिप्शन सुना, वो रविंद्रन, वो पीछे फोन पे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, अपनी पत्नी को बोलता है कि अमुक जगह जाओ अपने घर में, वहां जाओ, एक थैला है, उस थैला में मैंने ठाकुर के लिए कुछ इष्टवृत्ति अर्घ निवेदन किया है। उसकी पत्नी ने दीक्षा नहीं लिया था, उसको कुछ भी मालूम नहीं। बोला वो अर्घ वो दादा लोगों को आपके जाके दीजिए। हम जाके फिर उस भाई से मिले, वो जहां पे काम करते हैं वहां जाके मिले। वो इतना इमोशनल हो गया, बोला 2007 में मैंने दीक्षा लिया था, 15 साल पहले, वो भी बॉम्बे में। मेरे कुछ पारिवारिक के केरला शिफ्ट हो गया में हुआ है, वो शिफ्ट होके कहां केरला आया है, परमानेंट एड्रेस में बस गांव का नाम मात्र का और गांव का नाम दिया था, उतना ही। फिर बोला कि मैं सब भूल गया था, मैंने इष्टवृत्ति भी बंद कर दिया था, मुझे अभी भी कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे परिवार में इतना असुविधा, इतना सारा जंत्रणा शुरू हुआ। I was going through such a rough phase. Suddenly I remembered Thakur 3 years back, and I said, I must restart it again. I don't know what came upon me, something which I had long back for, given up. 3 साल पहले मैंने वापस से शुरू किया, और आज ठाकुर दया करके आपको मेरे पास भेजे। इनके सदन में है, इससे पहले हमको और इससे ज्यादा हमको और करने का आवश्यकता ही क्या है, एकमात्र उनका आदेश पालन करें। बैंगलोर में एक दिन दीक्षा के लिए निकला हूं, 3-4 घंटे करीब घूमा, एक दीक्षा नहीं हुआ। स्वभावतः ऐसा नहीं होता, उनकी दया से 3-4 घंटे एक ग्रुप में हम लोग घूम रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ दीक्षा हो ही जाएगा। करीब 3-4 घंटे हो गया, एक भी दीक्षा नहीं। सब लोग थोड़े से हताश भी हैं शायद। तो वापसी में एक जगह पे आए हैं, उधर चेष्टा किया है, वहां भी चेष्टा किया, कोई दीक्षा नहीं हुआ। तो हम लोग फिर
10 साढ़े 10 रात का टाइम होगा, हम लोग 3-4 लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, सामने कुछ एक चाय वाय कुछ व्यवस्था होगा तो पियेंगे और फिर घर पे निकल जाएंगे। मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद खराब जरूर था, स्वाभाविक रूप से बोले तो। चाय पी रहे हैं और ऐसे ही हताश है कि आज कुछ नहीं हुआ। अचानक इस बीच में से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, हम लोग ड्रेस देख के बोलता है, आप लोग क्या ठाकुर जी का दीक्षित हैं? आप लोग क्या सत्संग से जुड़े हैं? हमने बोला हाँ, और वो व्यक्ति लिटरली रोने जैसा लग गया। बोला, मैं कल रात को ठाकुर के समक्ष कितना रोया हूं। मेरा बैंगलोर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं बैंगलोर आए हुए मेरा 1 हफ्ता हुआ है, मेरा इष्टभृति का समय हो गया, पूर्ण हो गया इष्टभृति, और मैं कहीं जमा नहीं दे पा रहा हूं। मुझे घुटन हो रहा था कि मैं ठाकुर में तुम्हारा इष्टभृति कैसे, मुझे कुछ ज्ञात नहीं बैंगलोर के बारे में, यहाँ मंदिर है नहीं है, गुरु भाई है नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता था। और मैं बस ठाकुर के सामने कल रात रोया हूं कि ठाकुर दया करके मेरा इष्टभृति तो ग्रहण कीजिए, और आज ठाकुर ने आपको भेजा है। हम लोग को जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पूजनीय श्रीपाद दादा एक बात बोले थे एक समय में कि আমি জীবনে কিছু করি না, শুধুমাত্র তার লীলা উপভोग করে যাই। हम लोग जीवन में कुछ नहीं करता हूं मैं, एकमात्र उनका लीला उपभोग करता जाता हूं। हम लोग का भी यही कर्तव्य है, यही दायित्व है, एकमात्र हम उनका लीला उपभोग कर सकें, जीवन को आनंदमय कर दे सकें, स्वयं भी आनंद में रहे, अपना देश में भी ठाकुर जो आनंद स्वरूप है, सत्यचित आनंद, उनको वितरण कर सकें। और उनको वितरण उतना भर ही कर पाएंगे जितना भर अपने अंदर जागृत कर पाएंगे। जितना भर अपने अंदर जागृत करने का अर्थ ही है ठाकुर को मैं जैसा समझा हूं, स्वयं अपने अंदर वो चारित्रिक परिवर्तन का चेष्टा करना, सहज सोपान है उनको प्रेम मात्र करना। लव एंड सर्व हिम अनकंडीशनली एंड अचीव हिम अनकंडीशनली। इतना ही बोलकर, शायद मैं समय से अतिरिक्त समय ले लिया, क्षमा चाहता हूँ, इतना ही बोलकर शेष करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु दादा। इतना अच्छा लग रहा था कि लग रहा था कि और भी सुनूं, बट सत्संग में टाइम का एक ये रहता है हमारे। तो मैं आपके और आपके परिवार के मंगलमय जीवन के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। और आपको मैं बहुत परेशान किया था बोलने के लिए, बट ठीक है, अब मतलब थैंक यू फॉर दैट। आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपका इष्ट प्रसंग सुनने के लिए। हमेशा ही अच्छा लगता है राहुल दा, आप अच्छे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मेरा सौभाग्य है और मैं क्षमा चाहता हूँ, कई बार चेष्टा किया लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज मेरा सौभाग्य है, मैं जुड़ पाया। जय गुरु, जय गुरु। ओके, हमारे नेक्स्ट में प्रज्ञा परिदमा ओटवा से भजन करने वाले थे, बट शी इज नॉट वेल, तो उनके स्वस्थ शरीर के लिए हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। आज वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा खराब हो गया है। तो मैं अभी जो है एक कीर्तन के लिए अमन दा को निवेदन हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अमन दा हैज जॉइंड फ्रॉम दरभंगा, सो अमन सहाय दा। सो अमन दा, आप अगर एक कीर्तन करते। जय गुरु। आप म्यूट में है दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? जय गुरु। हाँ, अभी आवाज आ रही है। I am going to perform a Bhojpuri bhajan. Okay, I think that I guess that most of you are actually not familiar with the song, but it is a very popular song. Okay, Jai Guru. हाथ जोड़ी पैया पड़ी, ओ हम तो हार बबुआ, तनिक ध्यान दे के सुन ला, तू बतिया हमार बबुआ। ओ होला मनुष्य जन्मवा, कैले ना कोनो करमवा हो, अब कैसे होई
ओ बेड़ा पार बबुआ तनिक ध्यान दे के सुन ला तू बतिया हमार बबुआ। ओ मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, ओ मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की खानी, हो अब सारा जगत में गूंजेला जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। 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 आज संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, झूमेला भैया झूमेला, झूमेला भैया झूमेला। आज संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। अमृत सरोवर प्यार की लहरे ज्ञान फवारा छूटेला, ज्ञान फवारा छूटेला। अमृत सरोवर प्यार की लहरे ज्ञान फवारा छूटेला, ज्ञान फवारा छूटेला। ओ कृपा के बारिश हरदम होगी, कृपा के बारिश हरदम होगी, कृपा के बारिश हरदम होके, कृपा के बारिश हरदम होके। सब सत्संगी लूटेला। जय राधे राधे कीर्तन गाए संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाए संसार सारा झूमेला। आज संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला, संसार सारा झूमेला। झूमेला भैया झूमेला, झूमेला भैया झूमेला, संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाए संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गाए संसार सारा झूमेला। देवघर में संगीतवा तीरथ भक्ति भजनवा हो खेला, भक्ति भजनवा हो खेला, भक्ति भजनवा हो खेला, भक्ति भजनवा हो खेला। ओ बंदे पुरुषोत्तम के देई के नारा, बंदे पुरुषोत्तम के देई के नारा, बंदे पुरुषोत्तम के देई के नारा, बंदे पुरुषोत्तम के देई के नारा। सब सत्संगी झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। ओ जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। जय गुरु अमंदा, इट वाज सो नाइस। आप इतना अच्छा गाते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक प्रतिमा माँ, बिकॉज प्रतिमा माँ टोल्ड मी अबाउट यू। तो बहुत ही अच्छा था और आप इतना अच्छा गाते हैं। तो विल अगेन probably ask you on some other day. Probably we would like to hear from you many more times. आप ऐसे ही हमारे सत्संग से जुड़ा रहिएगा। बहुत ही अच्छा। मैं आपके और आपके परिवार के इष्टमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करूंगा। जय गुरु। Now we have সত্যজ্যোতি বোসদা, ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মী। আমি সত্যদা আপনাকে অনুরোধ করি একটু ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য।
আচ্ছা, কত মিনিট আছে তোমাদের? দাদা আপনি বলতে পারেন, 10-15 মিনিট তো বলতেই পারেন, এখন টাইম আছে আচ্ছা, বলেন। যাই হোক, পরম দয়ালের শ্রীচরণে প্রণাম, পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে প্রণাম, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার শ্রীচরণে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার চরণে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাইদার শ্রীচরণে প্রণাম। এতক্ষণ অনলাইনে দেওঘর থেকে ঋত্বিক কনফারেন্সের যোগ দিয়েছিলাম, তারপরে তোমাদের সঙ্গেও যোগ দিলাম। প্রথমেই সবাইকে আমার অন্তরের রানন্দিত শুভ বিজয়া জানিয়ে আজকে আমি শুরু করছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা অসামান্য ইষ্ট প্রসঙ্গ করে শোনালেন, মন প্রাণ আমাদের ভরে গেল। আর যারা বাণী পাঠ করলেন, কীর্তন করলেন, সবাই অতুলনীয়। মনের একাগ্রতা ইষ্টানুকূল করার জন্যেই আমরা যে চেষ্টা করি, সাধনা করি, এইগুলোই হচ্ছে কীর্তন এবং ভজন করার উদ্দেশ্য। এই কীর্তনের বা ভজনের বা বাণী পাঠ বা ইষ্ট প্রসঙ্গ আমরা যাই করি না কেন, এ কিন্তু শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, যারা শোনেন তারাও আকুল হয়ে ওঠেন। যাই হোক, এরা নিজ চেষ্টায় যা আমাদের শোনালেন, সবাইকে আমি অন্তরের শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাই। শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভাবধারা এই সমস্যা জীর্ণ পৃথিবীর বুকে এক নতুন জগৎ রচনা করে চলেছে। তিনি আমাদের সব সময় আমাদের গাইড করে রেখেছেন। আমাদের তিনি সাথের সাথী, ব্যথার বেথি, দুঃখ দহন দগ্ধ জীবনে আমাদের সংসারে স্নেহ মমতা দিয়ে ঠিক জননীর মতো নিত্য নিয়ত আমাদের আগলে রেখেছেন। এটা যেন আমরা কোনো সময় না ভুলি। আপনারা আমার কাছে শুনতে চান সেই হিমায়তপুর এবং দেওঘরের ঘটনা। এই পুজোর পরে বহু ঘটনা এই মনের মধ্যে আসছে, সেগুলো বলতে অনেক টাইম লাগবে, কিন্তু এই সময় বিশেষ করে হিমায়তপুর এবং দেওঘরে এই বিজয়া দশমী বা পুজোর সময় যা হতো, আমি কিছু কিছু আপনাদের শোনাতে আজ চেষ্টা করছি। এই পুজোর সময় বড়মা নিত্য নিয়ত পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। স্বামীর পরিচর্যা এবং
সবকিছুর মধ্যেও তিনি কিন্তু এই পুজো, সব রকমের পুজো আমরা বড়মার কাছে দেখতাম। এমনকি দুর্গা পুজো, কালী পুজো, সরস্বতী পুজো এবং লক্ষ্মী পুজো, নানান রকম যত হিন্দুদের পুজো আছে শ্রী শ্রী বড়মা পালন করতেন। এবং পুজোর পরে দয়াল পঞ্জিকা দেখি, ঠিক যখন বিজয়া দশমী হতো তিনি তার গুরুদেব, মা, বাবা এবং যাদের তিনি মনে প্রাণে ভক্তি করতেন সবাইকে প্রণাম জানাতেন বসে। আমরা সেই সব সময় আমরা ওয়েট করে থাকতাম, আমরা অপেক্ষা করতাম যে দয়াল কখন তার ভক্তি অর্ঘ্য গুরুজনদের দেবেন, এবং তারপরেই আমরা সবাই একে একে দয়ালের শ্রীচরণে, শ্রী শ্রী বড়দার, শ্রী শ্রী বড়মা এবং ঠাকুর পরিবারের সকলকেই প্রণাম জানাতাম। সেসব দিন মনের মধ্যে এখনো আনচান করে। যদি আপনাদের শোনাতে পারি এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। আজ ছোট পরিবার, সুখী পরিবার সবকিছু ভেঙে চুরে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সমাজের রন্ধে রন্ধে বাদ বিবাদ, বিতণ্ডা, বিষাদ, বিষণ্ণতা রন্ধে রন্ধে জুড়ে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছি। কথায় কথায় কাউকে আঘাত করাও যখন আমাদের দস্তুর, সব মানুষের ভিড়ের মধ্যেও একান্ত একা, নিঃসঙ্গ, অসহায় এই অবস্থায় কোন মন্ত্রে আমাদের গুরু ভাইদের মধ্যে এমনতর আশ্চর্য আত্মীয়তা কিভাবে সম্ভব হলো? এই যে আপনারা আমার পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছেন, যখন যা শুনতে চান আমি মন প্রাণ দিয়ে বলতে চেষ্টা করি আপনাদের। এই যে ভ্রাতৃত্ব, এটা দয়ালকে ভালোবাসার টানেই সম্ভব। বহু সৎসঙ্গী পরিবার এই দিব্য অনুভবের সাক্ষী, আপনারাও তার সাক্ষী। এই অকল্পনীয় অনুভবের মূলে রয়েছে ইষ্টকেন্দ্রিকতা, ইষ্টের প্রতি অটুট টান আমাদের এক পরিবারে প্রতিপন্ন করেছে। শুধু কানাডায় নয়, সমস্ত পৃথিবীর গুরু ভাইরা এক পরিবারে। আমরা দয়ালের এক পরিবার। যখন কোনো সৎসঙ্গ হয় বা গুরু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, সব সময় মনে হয় যেন আমি আমার পরম আত্মীয়র সঙ্গে কথা বলছি। তাই আপনাদের জানাই যে আপনারা যা করছেন, আজ যা করে চলেছেন, এর মূল্য আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন। আজকে বিশেষ সময় নেই, পুজোর বহু ঘটনা আশ্রমে যা যা ঘটত, সেই দিন যা খাওয়া হতো,
সেই সব উৎসবের ঘটনা আপনাদের শোনাবো। পরবর্তীকালে যদি সুযোগ পাই, আমি জানি আজকে অনেক টাইম হয়ে গিয়েছে, আপনাদের সবার চরণে আমি আমার যে সমস্ত কথা আপনাদের শোনালাম, দুর্গাবাড়ি ছিল হিমায়তপুরে, দেওঘরেও কাহারপাড়ায় দুর্গাবাড়ির সব ঘটনা পরবর্তীকালে শোনাবো। সবাই সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবেন। আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, আপনাকেও বিজয় প্রণাম নেবেন। আর শুভ বিজয় আপনাকেও, আপনার এবং আপনার পরিবারের সুস্থ ইষ্টকেন্দ্রিক জীবনের জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। नाउ विल लाइक हम लोग जय राधे कीर्तन अभी ये करेंगे, उसके बाद शेखर दा धुनी दे के सत्संग हम लोग खत्म करेंगे। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম। অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে। গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল
হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপাড়ানি করো রে রেশা ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপাড়ানি করো রে রেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে শেখরদা ধ্বনিটা দিয়ে দেন। Shekhar da nai, Sanjeev da will give. হ্যাঁ দাদা, ধ্বনিটা একটু দিয়ে দেন। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा की জয়। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा की জয়। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा की জয়। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की জয়। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की জয়। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की জয়। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की জয়। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की জয়। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की জয়। सत्संगों की জয়। वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे आर्य पितृन বন্দে আর্য পিতৃম वंदे मातृवर्गं বন্দে মাতৃবর্গন वंदे अहं कृष्टि दैवतम বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতং वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়। जय गुरु। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি 1 মিনিট তোমাদের একটা আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। হিমায়তপুরে এই সময় সৎসঙ্গের পরে এই বিজয়া দশমীর সৎসঙ্গ আলাদাভাবে হতো। সেখানে আমরা সবাই কোলাকুলি করতাম। কোলাকুলি ঘটনাটা আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না। কোলাকুলি মানে আর একজনকে জড়িয়ে ধরে একজনকে জড়িয়ে ধরে আমরা একবার এদিক করতাম
আবার জড়িয়ে ধরে আবার এই দিকে যেতাম, এইভাবেই কোলাকুলি হতো। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ অমিতা কিছু বলবেন? না না কিছু বলার নেই। জয়। ওকে দাদা, তাহলে কি দাদা ক্লোজ করে দেবো? হ্যাঁ শ্রদ্ধা তোমরা আপনি পরবর্তী ঘোষণা দিয়ে দিন, এরপরে সবাই জয়গুরু বিনিময় করতে পারবেন। সরি দাদা, কি দিয়ে দেবো? পরবর্তী ঘোষণা দিয়ে দিন, আবার কবে সৎসঙ্গ হবে তাহলে ভালো হয়। ও ওকে ওকে ওকে। হ্যাঁ মানে এটা মানে আমাদের এভরি মান্থ সেকেন্ড স্যাটারডে করে হয়, তো আমরা গ্রুপগুলোতে তো পাঠাই নর্মালি সেকেন্ড স্যাটারডে অফ এভরি মান্থ একটা সৎসঙ্গ ক্যানাডার নেশন ওয়াইড ভার্চুয়াল সৎসঙ্গ হয়। তো I will, anyway we তাহলে send এখন the link সবাই to জয়গুরু everyone. বিনিময় করতে পারবেন। Right, so আমি হ্যাঁ অনুরোধ হ্যাঁ করে নিশ্চয়ই দিচ্ছি। দাদা, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যাঁ সবাইকে অনুরোধ করবো সৎসঙ্গ ক্যানাডার ফেসবুক এন্ড পেজে জয়গুরু সবাইকে। সাবস্ক্রাইব করতে, so that all the updates are there. সৎসঙ্গ ক্যানাডা ফেসবুক এন্ড ইউটিউবে। তো সেক্ষেত্রে তারা যদি সাবস্ক্রাইব করে, they can like we update all the events of Canada there. So I request everyone to subscribe to Satsang Canada YouTube channel and Facebook page. Jai Guru. Dilip Bhattacharya, you are from where? Jai Guru Dada. জয় গুরু দাদা, সকল দাদা মামুনকে জয় গুরু। জয়গুরু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি। সবাইকে আমি ফ্রম কলকাতা। From Kolkata. Very nice. Okay. So one message from recent Ethic conference is very important and powerful message from Acharya Dev, that whatever we do, the first thing is we have to be perfect. We have to do whatever exactly Thakur wanted us to do. So we need to do more and more self-analysis. Are we aligned with his ideologies? Are we aligned with our thoughts, actions, and words? Thoughts, words, and actions. These two things I thought we have to try, each one of us. Let's get alignment with his ideology, and let's get alignment with our thoughts, words, and actions, and let's do more and more self-analysis and get alignment with him. That is the message we got from the Ethic conference. Jordan. Okay. Okay. Jai Guru sir. Tanada now. Okay. Sorry. Okay. Jai Guru. Okay. Jai Guru everyone. Jai Guru. Jai Guru. ঠিক আছে আমি বন্ধ করলাম তাহলে দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।